یہ پنجاب کی انگریز سرکار کے خلاف آخری مزاحمت تھی۔ پنجاب انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کی راہ میں آخری رکاوٹ تھا اور اس جنگ نے انگریزوں کا یہ قبضہ مکمل کر دیا۔ گجرات میں ہونے والی اس جنگ میں سپاہیوں نے کیسے بہادری کی تاریخ رقم کی۔ پنجاب کا وہ سرنڈر جس نے یہاں کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس لڑائی کا حال جانیے اس ویڈیو میں۔ گجرات کی لڑائی دوسری اینگلو سکھ وارز میں ایک ڈیسائسو بیٹل تھی جو 21 فروری 1849 کو لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ مکمل کر دیا۔ خالصہ راج کا پنجاب سے خاتمہ ہو گیا اور پنجاب برٹش راج کا حصہ بن گیا۔ اس جنگ نے نہ صرف پنجاب بلکہ برصغیر پر بھی انگریزوں کے قبضے کو مکمل کر دیا۔ اس ٹیک اوور کا آغاز انہوں نے پلاسی کی جنگ سے 1757 میں کیا تھا اور اس جنگ کے تقریباً 100 سال بعد وہ پورے برصغیر کے مالک بن گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد جب سکھ دربار گیم آف تھرونز میں مصروف تھا تو انگریزوں نے اس وقت پنجاب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ ایسے میں لاہور دربار اور کمپنی کے درمیان حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ دسمبر 1845 اور فروری 1846 کے دوران 3 ماہ میں مٹکی، فیروز شاہ، علی وال اور سبراؤں کی لڑائیاں لڑی گئی۔ ان لڑائیوں کو پہلی اینگلو سکھ وارز کا نام دیا گیا تھا، لیکن ان لڑائیوں میں سکھوں کی فوج کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد 9 مارچ 1845 کو سکھوں نے دریائے بیاس اور دریائے ستلج کے درمیانی علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سرنڈر کر دیے۔ یہ کمپنی سرکار کا پنجاب کے ٹیک اوور کا پہلا مرحلہ تھا۔ پہلی اینگلو سکھ وارز میں سکھ راج کی شکست کے بعد گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ نے لاہور دربار سے معاہدہ کیا۔ جنگ کے بعد ہوئے معاہدے کے مطابق 1846 کے آخر تک انگریز فوج نے لاہور سے چلے جانا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 16 دسمبر 1846 کو بھیرووال کے مقام پر پھر سے نیا معاہدہ کیا گیا۔ اس نئے معاہدے کے تحت انگلش ایجنٹ کو لاہور دربار کے تمام کاموں میں ہر قسم کی مداخلت کا اختیار مل گیا۔ ان معاہدوں کی ٹرمز خاصی انسلٹنگ تھی۔ انگریزوں کی لاہور دربار میں مداخلت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور یہی حالات ملتان اور سردار شیر سنگھ اٹاری والا کی بغاوت کا سبب بنے۔ ملتان میں جو کچھ ہوا، شیر سنگھ اٹاری والا کی بغاوت اور اس کے بعد چیلیاں والا کی لڑائی، اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ کانٹیکسٹ بتاتا چلوں۔ پہلی اینگلو سکھ وارز کے بعد ملتان بھی کمپنی کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ کمپنی نے ملراج چوپڑا کی جگہ سردار خان سنگھ کو گورنر نامینیٹ کیا اور لیفٹیننٹ پیٹرک وانز ایگنیو کو برٹش ایجنٹ مقرر کر دیا۔ جب پیٹرک ملتان پہنچا تو دیوان ملراج نے شہر اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اسے اور اس کے ساتھ آنے والے لیفٹیننٹ ولیم اینڈرسن کو قتل کر کے اس کا سر واپس کمپنی سرکار کو بھجوا دیا۔ گورنر جنرل جیمز اینڈریو براؤن نے میجر جنرل وش کی کمانڈ میں فوج ملتان بھیجی، جس نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ کمپنی سرکار نے سردار شیر سنگھ اٹاری والا کو بھی اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے بھیجا، لیکن اس نے لائنز کراس کر لی اور بغاوت کر دی اور اپنی فوجوں کا رخ ہزارہ کی طرف کر دیا، جہاں وہ اپنے باپ چتر سنگھ کی فوجوں کے ساتھ ملنا چاہتا تھا تاکہ انگریزوں کے خلاف ایک بڑی فوج کو اکٹھا کیا جا سکے۔ چتر سنگھ کمپنی کے خلاف پہلے ہی بغاوت کر چکا تھا۔ چتر سنگھ نے اس وقت افغانستان کے رولر امیر دوست محمد کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ انگریزوں کے خلاف اس لڑائی کو جوائن کرے، جو انگریزوں کی افغانستان میں ڈیزاسٹرس کیمپین کے بعد ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور پشاور پر پھر سے قبضے کا خواہش مند تھا۔ سردار شیر سنگھ اٹاری والا کی بغاوت کے بعد انگریز فوج سے پہلے لڑائیاں رام نگر اور اسد اللہ پور میں ہوئی۔ اس کے بعد دونوں فوجوں کا سامنا 13 جنوری 1849 کو چیلیاں والا کے میدان میں ہوا، جہاں ایک تاریخی لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف کا خاصا نقصان ہوا اور دونوں سائیڈز نے ہی اپنی اپنی فتح کلیم کی۔ چیلیاں والا کی لڑائی میں جس بے جگری سے پنجابی فوج لڑی، اس نے تاریخ رقم کی۔ پنجابی فوج کا مورال پھر سے بلند ہو گیا اور انہیں امید ہو گئی کہ انگریزوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس جنگ کے بعد انگریز فوج شیر سنگھ اور چتر سنگھ کی فوجوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں بھی ناکام رہے۔ پنجابی فوج کو لگ رہا تھا کہ وہ پنجاب سے اور شاید انگریزوں کا برصغیر سے ہی پیک اپ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف انگریز فوج کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے لیے اس پنجابی فوج کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے انہیں اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی۔
चिलियावाला की लड़ाई के बाद कई दिन तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से दोनों फौजें फिर से जंग शुरू ना कर सकी और वहां से विड्रॉ कर गई। लेकिन अभी फैसला कुन जंग बाकी थी, जिसमें ये फैसला होना था कि पंजाब किसका होगा। चिलियावाला में जो कुछ हुआ उसके बाद जनरल गॉफ, जो कि कंपनी फोर्सेस की कमांड कर रहा था, बरतानवी हुकूमत और प्रेस की क्रिटिसिज्म की जद में था और जनरल गॉफ को हटाने का फैसला हो गया। जनरल गॉफ एक सीनियर जनरल था, कमांडर इन चीफ था और उसने अभी तक एंग्लो सिख वॉर्स में कंपनी फौज की कमांड की थी। लेकिन चिलियावाला के बाद जनरल गॉफ की जगह मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर को कमांडर इन चीफ बनाकर भेजने का फैसला कर लिया गया। चार्ल्स नेपियर इससे पहले कंपनी के लिए सिंध फतह कर चुका था और वो गॉफ की जगह लेने के लिए लंदन से रवाना हो गया। शेर सिंह चिलियावाला के बाद अंग्रेज फौज से फौरी जंग चाहता था। उसे लगा कि यही मौका है और चतर सिंह की फौजें भी पहुंचने वाली हैं। लेकिन अंग्रेज कमांडर्स को मालूम था कि फौरी जंग उनके लिए डिजास्टर्स साबित होगी। शेर सिंह की फौज ने उस वक्त चिलियावाला और दरिया झेलम के दरमियान एक गांव रसूल में डेरा डाला हुआ था। चतर सिंह की फौज भी वहां आकर शेर सिंह की फौज से मिल गई। जब चतर सिंह की ये फौज पंजाबी कैंप में पहुंची तो उन्होंने 21 गन सैल्यूट से उन्हें वेलकम किया। कहते हैं इन तोपों की गरज ने कुछ दूर अंग्रेज कैंप को भी हिला कर रख दिया। चतर सिंह के साथ 1500 अफगान कैवलरी भी थी, जो अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने अपने बेटे अकरम खान की कमांड में सिख फौज की मदद के लिए भेजी थी। इससे पहले चतर सिंह की फौज को कुछ ब्रिटिश दस्तों ने हजारा में ही रोक रखा था। अमीर दोस्त मोहम्मद का मकसद पेशावर के वो इलाके वापस लेना भी था जो रंजीत सिंह ने फतह किए थे, लेकिन ये सपोर्ट बहुत हाफ हार्टेड थी। अफगान दस्तों ने आते हुए पहले पेशावर को टेक ओवर किया। इसके बाद वो अटक फोर्ट की तरफ बढ़े तो वहां मौजूद मुस्लिम ट्रुप्स जो कि ब्रिटिश कमांड के अंडर थे, उन्होंने गैरिजन खाली कर दिया और यूं चतर सिंह की फौज को मूव करने का मौका मिल गया और वो शेर सिंह की फौज से आ मिला। लेकिन फिर 25 जनवरी को सिख कैंप ने भी 21 तोपों का एक गन सैल्यूट सुना। ये अंग्रेजों की तरफ से फॉल ऑफ मुल्तान का ऐलान था। मुल्तान पर अंग्रेजों ने मुहासरे के बाद कब्जा कर लिया था और 22 जनवरी को अंग्रेज फौजें किले के अंदर पहुंच गई थी। यह बगावत करने वाली पंजाबी फौज के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जनरल विश की मुल्तान से आने वाली फौजों का रुख अब उनकी तरफ होगा और वो अब किसी भी वक्त कंपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती थी। अब इस फैसला को लड़ाई के लिए दोनों तरफ ही रीइंफोर्समेंट पहुंच रही थी। पंजाबी फौज की तादाद अब बहुत बढ़ चुकी थी और चिलियावाला में इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना और उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए फौज ने अब गुजरात का रुख करने का फैसला किया। ये फोर्सेस 2 मार्च को यहाँ से मूव कर गई। गुजरात वहाँ से 30 मील दूर था। अगर यहाँ वो अंग्रेजों को शिकस्त देते तो लाहौर सिर्फ 75 मील दूर था, जिसे आगे बढ़कर अंग्रेजों से वापस लेना ही पंजाबी फौज का मकसद था। जनरल गॉफ को मालूम हो चुका था कि उसे हटाया जा चुका है, लेकिन फौज की कमांड अभी भी उसके पास थी। चार्ल्स नेपियर, जिसने उसे रिप्लेस करना था, वो भी पहुंचा नहीं था। कहते हैं इस दौरान शेर सिंह अटारीवाला को एक समझौते की पेशकश की गई, क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह तो अंग्रेजों के कब्जे में ही था। लेकिन उसका एक ही मुतालबा था कि महाराजा को रिहा किया जाए और अंग्रेज फौज लाहौर से चली जाए। गुजरात पाकिस्तान का मशहूर शहर है। ये वो खिता है जिसने कई तारीखी जंगें देखी हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी गुजरात के चौधरियों की वजह से इसका खासा नाम है। शेर सिंह अटारीवाला की कमांड में जब पंजाबी फौज गुजरात पहुंची तो उसका रुख दरिया चिनाब की तरफ था। वो इस दरिया को क्रॉस करके पीछे की तरफ से गौफ की फौजों पर हमला करना चाहता था। गौफ की फोर्सेस भी खालसा फौज के पीछे गुजरात पहुंच गई। वो शेर सिंह को यह मौका नहीं देना चाहता था। 17 और 19 फरवरी को मुल्तान से आने वाली जनरल विश की फोर्सेस ने भी कंपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अंग्रेज फौज भरपूर तैयारी और कॉशियस अप्रोच के साथ ये जंग लड़ना चाहती थी। जो कुछ चिलियावाला में उनके साथ हुआ था वो उसको रिपीट नहीं करना चाहते थे। शेर सिंह की फौजों ने दरिया चिनाब से सिर्फ 5 मील दूर पड़ाव डाला हुआ था। यहाँ कई छोटी आबादियां या गांव थे, जिनमें हरियावाला, छोटा कालरा, बड़ा कालरा, कठाला जैसे इलाके शामिल थे। इन आबादियों के आसपास यहाँ हर तरफ खेत ही खेत थे। शेर सिंह ने अपनी इन्फेंट्री वहां 2 नालों के दरमियान में पोजीशन कर ली। इनमें से एक तरफ तो खुश्क दरियाई नाला था और दूसरी तरफ एक रनिंग स्ट्रीम थी, लेकिन ये नाले कोई सॉलिड डिफेंस नहीं थे और इनको क्रॉस किया जा सकता था। उनके सामने भी कोई खास प्रोटेक्शन नहीं थी और इन दोनों के दरमियान 3 मील का मैदान बिल्कुल फ्लैट था। कुछ अंग्रेज हिस्टोरियंस का यह ख्याल है कि सिख फौज चिलियावाला के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। सिख फौज के पास उस वक्त 59 यानी 59 गन्स थी, लेकिन इन गन्स को चिलियावाला की तरह झाड़ियों का एडवांटेज हासिल नहीं था। ये एक पिच्ड बैटल थी
जो 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। 21 फरवरी की उस सुबह जनरल गिलबर्ट और जनरल विश की कमांड में अंग्रेज फौज ने सिख आर्मी की तरफ मूव करना शुरू किया। जब अंग्रेजों की फौज हरियावाला के नजदीक पहुंची तो सुबह 9 बजे सिखों की गन्स ने फायर खोल दिया। कहते हैं ये फायर वक्त से बहुत पहले खोल दिया गया, जिससे अंग्रेजों की बढ़ती हुई फौज को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ती हुई अंग्रेजों की तोपों ने भी फायर खोल दिया। अंग्रेज फौज के पास शेर सिंह की फौज से 2 गुना तोपें थीं और ये टेक्नोलॉजिकली भी सिख तोपों से खासी एडवांस थी। दोनों तरफ से तोपों की गनगरज से मैदान लर्ज उठा। कई अंग्रेज सिपाही इस एडवांस में जख्मी हुए और उन्हें कुलीज में डालकर पीछे अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। दोनों तरफ से तोपों का यह फायर तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा और इस फायर ने सिखों की डिफेंसिव लाइंस को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी का सिख फौज के पास कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज आर्टिलरी के इस फायर में सिखों की कई गन्स तबाह हो गई। गौफ ने इस मर्तबा अपनी दूसरी फोर्सेस को तब तक रोके रखा जब तक उसकी गन्स ने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया। ये उसकी पहले की स्ट्रैटेजी से मुख्तलिफ था। वो इस पंजाबी फौज को किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। इससे पहले जनरल गौफ के मिलिट्री टैक्टिक्स पर खासी तनकीद होती रही थी। खासतौर पर चिलियांवाला के बाद कुछ अफसरों के ख्याल में वो बहुत रेकलेस था, जिसकी वजह से कंपनी की फोर्सेस में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती थी। लेकिन जहां इस लड़ाई के आगाज़ पर जो कुछ हुआ, उस वजह से गुजरात की इस लड़ाई को तोपों की लड़ाई या बैटल ऑफ गन्स भी कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज कैवलरी ने भी अपना चार्ज शुरू कर दिया। पंजाबी फौज ने छोटा कालरा और बड़ा कालरा की आबादियों को भी खाली करवा के वहां अपनी पोजीशंस संभाली हुई थी। यहां से सिखों की इन्फेंट्री ने अंग्रेज फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सिख सिपाही रूफ टॉप्स और खिड़कियों से अंग्रेज फौज पर फायर कर रहे थे। छोटा कालरा में अंग्रेज फौज की तकरीबन 150 कैजुअलिटीज हुई, लेकिन फिर अंग्रेज फौज उन घरों में दाखिल हो गई जहां पर इन सिख सिपाहियों और अंग्रेज फौजियों के दरमियान 10 ब 10 लड़ाई हुई। बड़ा कालरा को भी क्लियर कराने में अंग्रेज फौज की 300 कैजुअलिटीज थी। कई सिख सिपाही इस लड़ाई में मारे गए, लेकिन इस सख्त रेजिस्टेंस के बावजूद अंग्रेज फौज ने इन आबादियों को खाली करा लिया और नाला क्रॉस कर लिया। सिखों की तोपों का फायर अब कम होता जा रहा था। अब अंग्रेज कैवलरी और इन्फेंट्री अपनी फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दोनों फौजों के दरमियान बराह रास्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से कैवलरी एक दूसरे पर चार्ज कर रही थी। अंग्रेज फौज अपनी गन्स मुसलसल आगे मूव कर रही थी। कहते हैं इस जंग में पंजाबी फौज की कैवलरी का एक दस्ता मैदान जंग में उस जगह पहुंच गया जहां से जनरल गौफ अपनी फौज की कमांड कर रहा था। ये इतना नजदीक आ गए कि जनरल गौफ ने भी फायर के लिए अपना पिस्टल निकाल लिया। जनरल गौफ का बॉडीगार्ड इस हमले में जख्मी हो गया, लेकिन फिर इस हमले को भी पसपा कर दिया गया। एडवर्ड जोसेफ थैकवेल ने खुद लिखा है कि चिलियांवाला की तरह यहाँ भी पंजाबी फौज गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। वो एक हाथ से बेयोनेट को रोक रहे थे और दूसरे हाथ से तलवार से हमला करते थे। शेर सिंह अटारीवाला की फौज तो बेजिगरी से लड़ रही थी, लेकिन आर्टिलरी फायर ने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। अंग्रेज फौज उनकी सफ़ों तक पहुंच चुकी थी और उन तोपों पर भी कब्जा कर चुकी थी। कहते हैं शेर सिंह के अलावा बाकी सिख कमांडर्स मैदान छोड़कर जाने लगे और मैदान में सिर्फ सिपाही रह गए जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। शेर सिंह के 3 घोड़े एक एक करके गोलियां लगने से मारे गए। प्राइवेट जॉन राइडर ने इस जंग के बारे में लिखा है कि खालसा कमांडरों की बहादुरी पर तो सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इनके सिपाहियों पर नहीं। इनमें से कुछ आखिरी वक्त तक अपनी तोपों के साथ खड़े रहे। अब शेर सिंह की फौज पीछे हटना शुरू कर चुकी थी। गुजरात के इस मैदान में पहली जंगों की तरह रिट्रीट नहीं थी। जब अंग्रेज इन्फेंट्री ने अपने हमले और तेज कर दिए तो सिख फौज के पांव उखड़ गए। अंग्रेज फौज अब सिख फौज का पीछा कर रही थी। शेर सिंह के 2000 सिपाही मैदान जंग में मारे गए थे। सिख फौजियों की लाशें कई मील तक मैदान में बिखरी हुई थी। कई सिख सिपाहियों को कैदी बना लिया गया, लेकिन खुद अंग्रेज अफसरान के अपने अकाउंट्स के मुताबिक जैसे जैसे शाम हो रही थी, अंग्रेज फौज मैदान में गिरे जख्मी सिपाहियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्रिजनर यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहते। मैदान से जाने वाले खालसा सिपाहियों का अंग्रेज कैवलरी ने 12 मील तक पीछा किया। अंग्रेज फौज अगले दिन भी मेजर जनरल गिलबर्ट की कमांड में उनका पीछा करती रही। पिकेट्स बनाकर सिख सिपाहियों को ढूंढा और गिरफ्तार किया जा रहा था। जनरल गौफ की फौज की कैजुअलिटीज चिलियांवाला के मुकाबले में बहुत कम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने फिगर्स के मुताबिक इस जंग में उनके 96 सिपाही मारे गए थे और 750 के करीब जख्मी हुए, जबकि खालसा आर्मी के
2000 सिपाही या तो मारे गए, जख्मी हुए या कैप्चर कर लिए गए। सिखों की 56 तोपें भी कब्जे में ले ली गई। कहते हैं इस मौके पर गुलाब सिंह ने अंग्रेज फौज की मदद जारी रखी। उसने सिख फौज के मगरिब की तरफ जाने वाले रास्ते रोकने में अंग्रेजों की मदद की और दरियाए झेलम को भी क्रॉस करने में उनकी मदद की, ताकि सिख फौज पेशावर या हरिपुर की तरफ ना जा सके। इस तरह अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई इमदाद आने या उस तरफ जाने के चांसेस खत्म हो गए। इस मौके पर शेर सिंह ने अंग्रेजों को समझौते की पेशकश की, लेकिन कंपनी अफवाज ने इस मर्तबा कहा कि अगर सरेंडर होगा तो बगैर किसी शर्त के होगा। शेर सिंह की बाकी फौज दरियाए झेलम क्रॉस करके 11 दिन तक सफर करती रही, लेकिन फिर बिलाखिर उसने भी सरेंडर का फैसला कर लिया। उसकी फौज अब सिर्फ 20,000 रह गई थी और उसके पास सिर्फ 10 तोपें बची थी, जो किसी भी तरह की जंग के लिए नाकाफी थी। 14 मार्च को रावलपिंडी में उसने अपनी फौज समेत कंपनी के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों बाप बेटा चतर सिंह और शेर सिंह अंग्रेज कैंप में आए और अपनी तलवारें जनरल गिलबर्ट के सामने रखकर सरेंडर कर दिया। कहते हैं उस वक्त कुछ सीनियर खालसा सिपाही इस सरेंडर के हक में नहीं थे। कुछ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, कुछ के चेहरों पर गुस्सा और नफरत थी। थैकवेल ने लिखा है कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले सीनियर खालसा फौजी ने अपनी तलवार रखते हुए कहा कि आज रंजीत सिंह मर गया है। पहली एंग्लो सिख वॉर्स के बाद खालसा आर्मी तोड़ी जा चुकी थी। खालसा फौज के सिपाहियों को बखेर दिया गया था। जर्नैलों को या तो डिसमिस किया जा चुका था या फिर लालच देकर अपनी तरफ कर लिया गया था। यही नेमलेस सिपाही शेर सिंह की फौज से आ मिले थे और इन सिपाहियों के पास चंद जनरल्स और मामूली असलहा था और मजीद हथियारों के हसूल का भी कोई जरिया नहीं था। अफगान फौज जो लड़ने के लिए आई थी वो मैदान जंग से ही वापस चली गई, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनका भी पीछा किया और उन्हें अफगानिस्तान वापस धकेल दिया। 19 मार्च को अंग्रेजों ने पेशावर पर दोबारा कब्जा कर लिया। दोस्त मोहम्मद ने इसके बाद अंग्रेजों से मुआहदा किया, जिसके तहत उसने पेशावर पर उनकी अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया। इसके बाद 29 मार्च को लाहौर में दरबार बुलाया गया, जहां नौउमर महाराजा दलीप सिंह को एक मरतबा फिर से तख्त पर बैठाया गया। फिर यह फरमान पढ़ा गया कि पंजाब से बादशाहत खत्म हो गई है, और इसके बाद महाराजा दलीप सिंह तख्त से नीचे उतरा और वो इस पर दोबारा कभी नहीं बैठ सका। यूं रंजीत सिंह के उस राज का खात्मा हो गया जिसने पंजाब को बरे-सगीर की सबसे मजबूत रियासत बना दिया था। इस मुआहदे के तहत ही कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी के हवाले कर दिया गया, जो कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलका बरतानिया को दे दिया। जनरल गॉफ के करियर के सब दाग धुल गए। अगरचे उसे पहले ही हटाया जा चुका था, लेकिन चार्ल्स नेपियर के वहां पहुंचने से पहले ही उसने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल कर ली थी। जनरल गॉफ इसके बाद मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो गया और आयरलैंड वापस चला गया, जहां इसे विस्काउंट बना दिया गया। शेर सिंह और चतर सिंह को पहले तो 1855 तक कैद में रखा गया, लेकिन इसके बाद उन्हें पंजाब से बेदखल कर दिया गया। चतर सिंह का इंतकाल 1855 में कलकत्ता में और फिर शेर सिंह का 3 साल बाद बनारस में हुआ। दीवान मुर्राज को काला पानी भेज दिया गया। महाराजा दलीप सिंह भी अंग्रेजों का कैदी रहा। उसे उसके बाद इंग्लैंड एग्जाइल कर दिया गया और वो फिर सिर्फ 2 दफ़ा हिंदुस्तान आया और 22 अक्टूबर 1893 को दलीप सिंह का पेरिस के एक होटल में इंतकाल हो गया। दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स के बाद सिखों की अंग्रेज़ों से रिलेशनशिप भी बदल गई। सरप्राइजिंगली 1857 की जंग आज़ादी में सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसके बाद भी अंग्रेज़ी फ़ौज का बड़ा हिस्सा पंजाबी सिखों पर ही मुश्तमिल रहा। ऐसा क्यों हुआ, ये एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुजरात की लड़ाई पंजाब पर से सिखों के राज के मुकम्मल खात्मे की वजह बनी। अंग्रेज़ों के पंजाब के टेक ओवर का आगाज़ पहली एंग्लो सिख वॉर से हुआ था और 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने पंजाब से खालसा राज का खात्मा कर दिया। पंजाब ने सरेंडर कर दिया। गुजरात की इस लड़ाई ने पंजाब सिखों से ले लिया, जिस पर उनकी मिसलों और महाराजा रंजीत सिंह ने तकरीबन 100 साल तक राज किया था। इस लड़ाई के चंद साल बाद कंपनी राज भी खत्म हो गया और पंजाब समेत इसके तमाम इलाके ताज बरतानिया के पास चले गए और पंजाब एक आज़ाद रियासत से ब्रिटिश राज का एक सूबा बन गया। सोचिए, अगर खालसा फौज के कमांडर अपनी फौज के साथ लॉयल रहते तो क्या होता। अगर इन एंग्लो सिख वॉर्स में अंग्रेज़ों को शिकस्त हो जाती तो फिर पंजाब के अलावा बरे-सगीर का नक्शा क्या होता। क्या इन जंगों की आउटकम मुख्तलिफ हो सकती थी। है तो ये अगर मगर की गेम, लेकिन आपके ख्याल में बरे-सगीर की तारीख पर इसका क्या असर पड़ता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।